In the last class, we've discussed about the matrices. That matrices are special set of numbers which are arranged in rows and columns. The horizontal arrangement is called the rows, and the vertical arrangement are called the columns. Okay. Then we have classification. Classification of we classify the matrices according to its order, and what the order of matrix is. Order of matrix is rows multiplied, because we're not multiplying them, but we are expressing them. Okay, how many rows and how many columns are there? Like in this matrix, there are 2 rows and 2 columns, so we are writing the order as 2 by 2. We're not multiplying them. 2 by 2 is 4. We're not going to write the multiplication, but we have to write it like this. Okay, then we have discussed about the different types of matrices. Square matrix, in which rows and columns are equal, like this one, 2 by 2, 3 by 3, 1 by 1. Rectangular matrix, in which the number of rows and number of columns are not equal. A few examples are this one. We have 2 rows and 1 column, so order is 2 by 1. Here we have 1 row and 2 columns, so order is 1 by 2. Here we have 2 rows and 3 columns, so order is 2 by 3. This first one is a special matrix called column matrix, because it has only 1 column. And it is very important because we will do transformation in vectors by using this matrix. So we have to remember this. This is called the row matrix because it has only 1 row. Then we have null matrix. Null matrix is a matrix having all the elements equals to 0. Okay, for example, this is the example of 2 by 2 null matrix. So we are writing it 0, 0, 0, 0. It's a 3 by 3 null matrix. So all the elements are 0. Then we have identity matrix. Identity matrix is the matrix which have diagonally 1. So for a 2 by 2 matrix, it's 1, 0, 0, 1. And for a 3 by 3 matrix, it's 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. And I told you that identity matrix is just as number 1 in numerics. Like we are multiplying any number by 1, it gives the same result. So whenever a matrix multiply by the identity matrix, it gives you the same result. There is no change in the result. Okay. Then we have discussed about the equal matrix. Equal matrix, few questions I gave in the worksheet as well. Equal matrix are two matrices are said to be equal when they have same number of rows and columns. If they have different number of rows, like rectangular matrix, then in that case it will not be equal. Okay, so these are the two matrices which are equal. So for equal matrices, we can compare the corresponding elements. The first element can compare the first element, second with second, third with third, and fourth with fourth. So this is how we have to find the values of the unknowns. I hope you guys have done the worksheet. उसमें आपकी practice हो गई होगी इसके अंदर. Then we can multiply a matrix by a scalar number. Scalar number means a normal number. So the procedure is that number will multiply each and every element of the matrix. So 2 multiplied by 2 is 4, 2 multiplied 3 is 6, 2 multiplied 4 is 8, and 2 multiplied minus 1 is minus 2. Right? Then we have discussed about the addition and subtraction of the matrices. Addition and subtraction of matrix is possible when they have same order. If the matrices have same order, then we can add or subtract the matrices. Otherwise, we cannot. Okay. So few examples I've written 2a plus 3b. So I just multiply the matrix A by 2 and the matrix B by 3 and simply add the corresponding elements, first with first, second with second, third with third, and fourth with fourth. My answer is this. 3a minus 2b. So multiply this by 3, multiply this by, just give me 1 minute. Okay.
So we can multiply the first matrix by 3, the second matrix by 2, and then we can subtract. This is one choice. And the other choice is we can multiply the matrix by 3 and the second matrix by -2, and then we can add the two matrices. So whatever is comfortable for you, I prefer this one. You keep the sign outside and multiply with the number and then subtract the elements. ये थोड़ा handy रहता है, easy रहता है. ठीक है जी. Then हमने डिस्कस किए, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी, ये क्वेश्चंस देखे थे हमने बुक से. आप लोगों ने ये कर लिए तो खुद. फिर ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी. Then we have discussed about the multiplication. Multiplication is a bit challenging but different. The procedure of multiplication is called row versus column method. That means each and every row will multiply with each and every column. Like first row, first column, and then first row, the first element multiply with the first element, second element multiply with the second element. Usually students do what? They multiply the first with first and first with second, then second element with this and second element with this. This is a wrong approach. रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. So A multiplied by W is AW plus B multiplied by Y is BY. Now first column finished. Now the same row will multiply with second column. ठीक है जी. So A multiplied by X, so it's AX plus B multiplied by Z is BZ. Now first row multiply with both the columns, right? Now first row finished. Now we have to go for second row, same procedure for second row. Second row, first column, C multiplied by W plus D multiplied by Y, and C multiplied by X plus D multiplied by Z. We can see that these elements are same. So they have, if these elements are same, that means that the matrix multiplication is correct. ठीक है भाई. एग्जाम्पल हमने नंबर्स में डिस्कस कर लेते हैं. 2 multiplied by -1 plus 3 multiplied by 4. ये रो 1 कॉलम 1 हो गया. फिर रो 2 कॉलम रो 1 कॉलम 2, 2 multiplied by 4 plus 3 multiplied by 2. फिर कॉलम रो 1 तो कॉलम 1 से भी हो गया, कॉलम 2 से हो गया. नाउ कट फिनिश. नाउ वी हैव टू गो फॉर रो 2. रो 2 कॉलम 1 -1 multiplied by -1 plus 4 multiplied by 4. And then -1 multiplied by 4 plus 4 multiplied by 2. Finish with the multiplication. Now we just have to add or subtract the result. And this is my answer. This is we did in last class. These two multiplications we did in last class. इसकी अगर मैंने एग्जाम्पल डिस्कस की होगी मैंने ये. आई होप कि यहाँ तक आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है हो गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह. 1 2 3 4 5 6 7 माशाल्लाह. आउट ऑफ कितने क्लास में 28 है ना. 28 माशाल्लाह. साथ ही सिर्फ क्या वो गैर पढ़े लिखे हैं, बाकी सारे पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह क्लास में. जी मल्टीप्लिकेशन की आगे हम यहाँ प्रोसीड कर रहे हैं. यहाँ तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था. आज हम यहाँ आगे प्रोसीड कर रहे हैं इसको. There are certain conditions. First we need to check before multiplying two matrices. दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं कुछ. For example, if we have a matrix 2 3 -1 4 multiplied by 2 4 जी. अब हमें चेक करना है कि क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं होती, मगर मल्टीप्लिकेशन में रूल डिफरेंट होता है. नहीं है सर, नहीं पॉसिबल है आई गेस. नहीं. अच्छा चलो देख लेते हैं. The order is 2 by 2 and the order of this matrix is 2 by 1. If the number of columns of the first matrix and number of rows of the second matrix are same,
That means the matrix multiplication is possible. ठीक है जी? If the number of rows of the first matrix and number of columns of the second matrix are equal. Sorry, number of columns of the first matrix and number of rows of the second matrix are equal. That means the matrix multiplication is possible. And तो लाइक this, डिफरेंट नंबर्स होंगे तो नहीं होगा. अगर ये दो नंबर्स डिफरेंट होंगे जो मैंने सर्किल किए हैं, अगर ये डिफरेंट है तो नहीं होगा. मैं एग्जांपल देता हूँ अभी आगे. एंड द आंसर हैव दिस ऑर्डर 2 by 1. ये 2 by 1 जो है ये हमारे आंसर का ऑर्डर है. देखें कैसे. I have to multiply 2, 3, -1, 4 by 2 and 4. Row 1, column 1. Multiply by करते हैं. 2 multiply by 2 plus -1 multiply by 4. Row 1, column 1 finish. Now there is no column 2. So we are not going to multiply the row 1 with column 2. So है ही नहीं, आप तो multiply क्या करेंगे उसको. Go for row 2. 3 multiply by 2 plus 4 multiply by 4. Finish. 2 to the 4 -4 6 plus 16. ये हो जाएगा आपका 0 and 22. See the answer, the order of the answer is 2 rows and 1 column. 2 by 1. ठीक है भाई. एक और एग्जांपल देखते हैं. अच्छा, एक सवाल है. लेट्स डू वन थिंग. नंबर्स में तो ऐसा होता है ना, 2 multiply by 3 या 3 multiply by 2 will give you the same answer. 2 3 are 6, 3 2 are 6. चेक करते हैं मैट्रिक्स में भी ऐसा होता है कि नहीं होता. 2 4 मैंने पहले लिख दिया और मैट्रिक्स जो है 2 3 -1 4 मैंने बाद में लिख दिया. ठीक है जी. इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 1. इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2. सॉल्व भी नहीं होगा. जी, ये दो नंबर सेम नहीं है, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है जी. इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट में फर्क आ जाता है. फिर अगर रिजल्ट चेंज नहीं करेंगे हम, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे तो इट गिव्स द सेम आंसर. ऑर्डर चेंज कर देंगे इट गिव्स अ डिफरेंट आंसर. एक एग्जांपल देखते हैं. 2 -1 3 2. ओके, काम करते हैं, एक और बढ़ा देते हैं इसमें. 4 -3. मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 by 2 मैट्रिक्स से. लेट्स सी. 1 3 -1 4. इसका ऑर्डर क्या है आपके पास? 3 by 2. इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2. दैट मीन्स द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, क्योंकि ये नंबर सेम आ गया हमारे पास. ठीक है. और जो आंसर आएगा उस आंसर का आंसर ऑर्डर आएगा 3 by 2. चेक करते हैं. रो 1 कॉलम 1. रो 1 कॉलम 1. 2 multiply by 1 plus -1 multiply by 3. रो 1 कॉलम 1 मल्टीप्लाई हो गया. अब रो 1 कॉलम 2. 2 multiply -1 plus -1 multiply by 4. यहाँ पास फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन हो गई कंप्लीट. नाउ सेकेंड रो. 3 multiply by 1 plus 2 multiply by 3. 3 multiply by -1 plus 2 multiply by 4.
सेकेंड रो की मल्टीप्लीकेशन पूरी हो गई हमारी। थर्ड रो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 4. Now we just have to add, subtract 2 ones are 2, -3 is -1. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. -2 -4 is -6. 3 plus 2 3s are 6 is 9. -3 plus 2 4s are 8 is 5. 4 minus 9 is -5. And -4 minus 12 is -16. So you can see that the answer is row 1. This is row 1, row 2, row 3, column 1, column 2. The order is 3 by 2. ठीक, वही आया था आपका आंसर का ऑर्डर 3 by 2. कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. नहीं सर, क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह. बाकी लोगों के तो मुंह में लड्डू है मेरे ख्याल में, या दही जमाई हुई उन्होंने कि वो अगर मुंह हिलाएंगे तो दही जमेगी नहीं. आ रहे खामोश बैठे हैं, खैरियत आ रहे. सर क्लास चल रही होगी, पीछे कुछ और चल रहा होगा। हाँ ऐसे ही कुछ लग रहा है. जी सर, उन्हें सर हुक्म करें आप। मैं हुकुम क्या करना, मैं हुकुम करने की मेरी मजाल है कि मैं आपको हुकुम करूं. सर लिख रहा था इसलिए नहीं बोल रहा था कुछ। ओ माय गॉड. अच्छा चलें जी. चलिए जी, स्टार्ट. सर सारे। हाँ सारे करने में कुछ पॉसिबल होंगे, कुछ पॉसिबल भी नहीं होंगे इसमें. सर सवाल ही हटा दिया आपने तो। मैं हाथ लगा रहा हूँ, बाहर लगा रहा हूँ, एक दो पार्ट्स और लगा दूँ तेरा. Okay, the monthly fee in dollars charged by 3 child care centers is given in the matrix C. ठीक है जी, ये फीस दी हुई है चाइल्ड केयर सेंटर एक्स वाई और जी की. Then find the annual fee in dollars charged by each of the 3 child care centers, giving your answer in matrix form. There is a monthly fee. They ask for the annual fee. What should we do? क्या करना होगा भाई? मल्टीप्लाई बाय 12। बस सिंपल मल्टीप्लाई बाय 12, सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. We just have to multiply 12 by the matrix which is given 680, 720 and 635. जी शाहिर बोले. सर ये बुक कौन सी जरा बता देगा।
बुक 4 है ना? Twelve multiplied by 680, 8160. 12 multiplied by 720, 8640, and 12 multiplied by 635, 7620. Jazakallah. Okay, this is part 1. Part 2, during the June and December holidays, all the 3 childcare centers offer some special programs for an additional cost given in the matrices. Okay, J and D respectively. J में दे रहा है 150, 120 and 200 के कुछ programs हैं, और D में दे रहा है 180, 150 and 200. There are 2 programs, program J and program D. Evaluate the matrix 12C plus J plus D and explain what this matrix represents. D. Part B में we just have to find 12C plus J plus D. पहले तो ये बताएं कि एडिशन पॉसिबल होगी, सही? शहीद, ये मल्टी एडिशन पॉसिबल होगी बेटा? सर मुझे इस बारे में आइडिया नहीं, मैं पिछली क्लास में नहीं था। अबे तो वीडियो देख लेनी चाहिए थी ना भाई। तो अभी क्या समझ में आ रहा है? अभी मैंने तुम्हें शुरू में रिवीजन भी करवाया, उसके बाद भी। सर कल देखूंगा मैं वीडियो बैठ के आराम से। क्या बात है, फिल्म थोड़ी है कोई कि वीकेंड पे देखोगे तुम बैठ के, हैं? सर फिल्म ही समझे। सही बात है। 180, 150 एंड 200। मल तो तुम क्लास छोड़ के चले गए। अरेज, एडिशन पॉसिबल है इसकी? और है तो क्यों है? अरेज, सर बताता हूँ, सर बताता हूँ। अब पेज पलटने से कुछ थोड़ी होगा। पूरी है ना सर, एक मिनट दोबारा बताऊंगा। हाँ सर, पॉसिबल है, पॉसिबल है। कैसे? सर रोज और कॉलम सेम है ना। जी, इसके लिए पेज पलटने की जरूरत थी कि याद? ये सिंपल सी बात याद नहीं है? वो सर भूल गया था, रिवाइज नहीं किया था मैंने सर। 3/1, 3/1, 3/1, तीनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब है कि एडिशन इज पॉसिबल। दिस विद दिस विद दिस, तीनों ऐड हो जाएंगे, और इसके बाद जो है हमारे पास ये इससे ऐड हो जाएगा, और ये इससे ऐड हो जाएगा, और ये इससे और ये इससे ऐड हो जाएगा। तो 8160 प्लस 150 प्लस 180, 8490, 8640 प्लस 120 प्लस 150, 8910, 7620 plus 400, 8020. This is the answer for part B. Then part 3, Mrs. Yeo wants to enroll her son in one of the child care centers, and she is interested in the June special program only, which child care charges the lowest fee. जी भाई, सबसे पहले आप देखना एनुअल प्रोग्राम किसका कम है, एनुअल फी कितनी कम है किसकी? सबसे कम एनुअल फी जो कम है वो जी की आ रही है, चाइल्ड केयर जी की, विच इज 7620। ठीक है जी। उसमें जून का प्रोग्राम हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा 7820, राइट? बाकी जो दोनों हैं वो तो ज्यादा है, उसमें अगर हम 120 150 भी ऐड करेंगे तो अमाउंट ज्यादा ही बनेगा उसका। सो शी हैज ऑप्शन फॉर चाइल्ड केयर सेंटर जी, जिसकी एनुअल फीस 7620 है, प्लस द जून प्रोग्राम इज 200, कॉस्ट टोटल बनेगी 7820। सही है?
तो ऑप्शन चाइल्ड केयर सेंटर जी इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप कि देयर इज नो कंफ्यूजन। यस सर क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह शहीद भाई। कम से कम थम्स अप, कुछ ओके, कुछ तो बोल दिया करो, अल्लाह के बंदो, मुंह में लड्डू लेके बैठ रहे थे सारे के सारे। हाँ आज तो बेटा, आज तो आओगे ना कराची, आप इससे बताऊंगा तुमको। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जज़ाकल्लाह हारिस। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होती, ठीक है जी। इसका हम नॉर्मल नंबर्स में क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखा हुआ 3/2, अगर कोई इसको यूं लिख दे, इंडिसेस की प्रॉपर्टी यूज करके 3 × 2 की पावर -1, इट गिव्स द सेम रिजल्ट 1.5। ठीक है जी, क्यों कोई एतराज है इसमें? ठीक है, कैलकुलेटर से अगर आप इसको करके देखेंगे, इट गिव्स द सेम रिजल्ट। सेम इज द केस विद मेट्रिसेस। सेम इज द केस विद मेट्रिसेस, यानी हम किसी को चीज को डिवाइड करने के बजाय हम उसका इनवर्स निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर कोई मैट्रिक्स डिवाइड हो रहा है, A/B मैट्रिक्स हो रहा है, तो हम क्या करें, उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें सेकंड मैट्रिक्स के इनवर्स से, तो हमारी डिवीजन वाला काम हो जाएगा। अब हमें सीखना यहाँ पे ये है कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला इन मैट्रिसेस, 1 upon determinant of A multiply by adjoint of A. This is called determinant। डिटर्मिनेंट जो है एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करती है, और एडजॉइंट के अंदर जो है वो हम थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देते हैं। इसके एक्चुअल मेथड्स तो खासे लेंथी हैं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम शॉर्टकट्स करेंगे उसके। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए मैट्रिक्स ए एज A, B, C एंड D। अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे डायगोनल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A × D माइनस B × C। ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा मेरे पास। और एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे इन दोनों की पोजीशंस चेंज करनी होंगी, ए और डी की। ये हो जाएगा D एंड A, और इन दोनों की साइंस चेंज करनी पड़ेंगी, B एंड C की, तो ये बन जाएगा -B - C। ये एडजॉइंट आ जाएगा। ये शॉर्टकट है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, मैं कोई लॉजिक आपको इसकी नहीं बता सकता। एक्चुअल प्रोसीजर इसका बहुत लेंदी है, तो हम उसके एक्चुअल प्रोसीजर जाने के बजाय शॉर्टकट्स यूज करते हैं। सवाल पे अप्लाई सर करके देखते हैं इसको। सर ये हम एडजेसेंट बता दो था, एक आपने कैसे निकाला जरा दोबारा? एडजॉइंट, एडजेसेंट नहीं, एडजॉइंट। ठीक है, इसमें एडजॉइंट के अंदर इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है, ए और डी की पोजीशन चेंज हो गई तो डी और ए हो गया, और बी और सी की साइंस चेंज करनी है, -B और -C। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ख्याल रखिएगा कि चूंकि डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो कभी भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मैं लिख दे रहा हूँ इस बात को, इंपॉर्टेंट डिस्कशन बात है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बार दफा आ जाता है। मैट्रिक्स having determinant
equals to 0 are called singular matrix and its inverse doesn't exist. A matrix having determinant equals to 0 are called singular matrix and its inverse doesn't exist. ठीक है जी, उसका इनवर्स नहीं निकल सकता जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा. ठीक है, अब इनवर्स निकाल के देखते हैं एक मैट्रिक्स का. फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, -1 3 4 -2. ये -3 कर लेते हैं, 2 उठा देते हैं, माइनस नहीं कर देते. अच्छा, इनवर्स निकालने के लिए जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स. 3x3 का भी नहीं आएगा और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी इनवर्स नहीं आता, क्योंकि 3x3 के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना तकरीबन 3 से 4 पेज का प्रोसीजर होता है, तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. ऐसे सामने बोला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो हम For real, sir. For real. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 मल्टीप्लाई बाय -3 -2 प्लस 4 3 is 12. द आंसर इज 10. इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. सो इनवर्स विल बी A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A. तो 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट हमारे पास क्या बनेगा इसका, 2 और -1 की हम पोजीशन चेंज कर देंगे और -3 और -4 की साइंस चेंज कर देंगे, तो 3 एंड -4. इसको हम इसी फॉर्म में भी रहने छोड़ सकते हैं या हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 10 यानी 1 अपॉन 5, 3 अपॉन 10 ये हो जाएगा -2 अपॉन 5 और -1 अपॉन 10. ये भी लिख सकते हैं, इसको दोनों तरीके से हमारा आंसर सही है. अगर आप हजरात को कुछ थोड़ा सा याद हो, जो कि मुझे उम्मीद है कि याद किसी के को भी नहीं होगा, मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब मैं बता रहा था आपको, तो मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको. Matrix multiply by identity matrix will give you the same matrix. ठीक है जी, A multiply by I will give you the same result A. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस A को उठा कर तो ले जाऊं, तो ये क्या बन जाएगा, इसी से ड्राइव हो जाएगा. A मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इज इक्वल टू I. ये बनेगा, यानी अगर मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए 1001. इसका मतलब है कि आपका इनवर्स बिल्कुल ठीक है. ये सवाल फ्रीक्वेंटली नहीं आया हुआ, मगर एक आध सवाल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया. इसको चेक कर लेते हैं. ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास था -1 4 -3 2. ठीक है जी, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास था 1 अपॉन 5 3 अपॉन 10 -2 अपॉन 5 -1 अपॉन 10. मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं.
minus 1 multiply 1 upon 5 is minus 1 upon 5. Minus 3 multiply by minus 2 upon 5 to plus 6 upon 5. Okay, minus 1 into 3 upon 10 to minus 3 upon 10. And minus 3 into minus 1 upon 10 to plus 3 upon 10. First row दोनों सब कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई. The second row multiply first column 4 upon 5 and ये हो जाएगा minus 4 upon 5. And second one is 4 3 is 12 upon 10 minus 2 upon 10. ठीक है भाई. We can see that 4 upon 5 minus 4 upon 5 cancel हो रहा है. Minus 3 upon 10 plus 3 upon 10 cancel हो रहा है. इसका मतलब तो ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0. और इसको मैं एलसीएम निकाल के 6 minus 1 करूंगा तो ये हो जाएगा 5 upon 5. और यहाँ पे भी एलसीएम निकाल के सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 10 upon 10. which आखिरी में सिंप्लीफाई होने के बाद will give me the result 1 0 0 1. Proves that when a matrix multiply by its inverse, it gives the result identity matrix. जी भाई, any question? क्वेश्चन नहीं है कोई? क्लियर हो गई बात मेरी? अबे हाँ ना तो बोल दिया करो भाई, आगे चले, टाइम ज़ाया हो रहा है हमारा. थम्स अप ही कर दो. जज़ाकल्लाह. भेजा कुछ पूछना है बेटा? नहीं सर, क्लियर है, थैंक यू. अल्हम्दुलिल्लाह. चलें इसी क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन 1 ही एक सिंपल है इसमें क्वेश्चन. फिलहाल प्रैक्टिस करें क्वेश्चन 1 की. मैं इसका ये प्रोसीजर यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ. दैट विल बी आई थिंक इजियर फॉर यू गाइस. चलिए जी स्टार्ट. वैसे ऑल्टरनेट पार्ट्स कर लें, सारे करने की जरूरत नहीं है. सेम चीज रिपीट हो रही है बार बार. मेरे ख्याल है पार्ट 2 4 6 और 8 कर लें बस. 4 6 8. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो ये जो मैंने आपको सिंगुलर वाली कंडीशन बताई थी ये उसकी है. गिवन दैट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 16 फाइंड द वैल्यू ऑफ. ये नहीं, वो वाली चीज नहीं है, ये वाली चीज नहीं है. ठीक है, इसमें इसमें आपको डिटरमिनेंट दे रहा है और एक अननोन दे रहा है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है. खत्म, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 2a multiply by 5 plus minus 4 multiply by minus 1 and the result they are giving us as 16. तो हमें सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जाएगा 10a plus 4 is equal to 16 and a is equal to 12 over 10 which is 6 over 5. Yeah, one whole number 1 upon 5 is the answer. 7 और 8
कुछ नहीं करना है, इसने कहा है कि डिटर्मिनेंट 16 है, डिटर्मिनेंट 16 दे रहा है वो आपको। तो हम सिंपल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फॉर्मूला लगाया मैंने, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2a मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस ओ, मैंने प्लस लिखा हुआ है, सॉरी सर आपने एडजॉइंट निकाल दिया। नहीं मैंने एडजॉइंट नहीं निकाला, बीच में डिटर्मिनेंट के बीच में माइनस साइन आता है, मैंने प्लस साइन लिख दिया गलती से, -4 मल्टीप्लाई बाय -1, रिजल्ट इज डिटर्मिनेंट दे रहा है आपको ये 16 है, फिर हो जाएगा 10a -4 1 4 इज इक्वल टू 16, -4 जाकर उधर ऐड हो जाएगा, 10a इज इक्वल टू 20 एंड a इज इक्वल टू 2। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, ये प्री एंड पोस्ट ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्री एंड पोस्ट ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, यानी ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ता है। ठीक है जी। तो अब जैसे यहाँ पे आप गौर से देखें तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ हमारे पास, तो अब मैं इसका इनवर्स जब यहाँ शिफ्ट करूंगा, उसका इनवर्स कहाँ लिखूंगा मैं? इस मैट्रिक्स से पहले लिखूंगा या इस मैट्रिक्स के बाद लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा, मैं कहाँ लिखूंगा इसको? ये एक रूल कहलाता है प्री एंड पोस्ट ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन के, अगर आपके पास इनवर्स से पहले मैट्रिक्स बाद में लिखा हुआ है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकालने के बाद भी वो बाद में ही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ ऊपर वाले केस में अगर आप देखें तो a मल्टीप्लाई बाय द मैट्रिक्स है, तो इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 0 2 -3, एंड दूसरे मैट्रिक्स का हम इनवर्स लिखेंगे 3 1 2 4 का इनवर्स। इन दी अदर हैंड अगर हम नीचे वाले पार्ट में देखें, नीचे वाले में मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है और b बाद में लिखा हुआ है, तो अगर हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मतलब है कि जो ये मैट्रिक्स है इसका इनवर्स पहले आएगा, 3 1 2 4 इसका इनवर्स पहले आएगा और फिर वो मल्टीप्लाई होगा 3 -4 2 -6 है। दिस इज कॉल्ड पोस्ट ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज कॉल्ड प्री ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, दिस इज पोस्ट ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज प्री ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन। सर जैसे लिखा हुआ उसको वैसे ही मल्टीप्लाई करा दें। हाँ, इनवर्स निकाल के भी वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। इनवर्स आप जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे और निकालने के बाद हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट द आंसर, दैट्स इट। ठीक है भाई, सॉल्व करें जल्दी से, क्वेश्चन 7 के दोनों पार्ट सॉल्व कर लें। क्वेश्चन 7 के दोनों पार्ट सॉल्व कर लें।